So hello all, I welcome you all in our next video of in English literature periodic test 1, and we will be going through first lesson, that is how beautiful is the rain, which is getting continued for class 8th, right? So if you remember, in our last video we have gone through the same chapter where we have studied few stanzas of this particular poem. So today we will be going through the rest of the stanzas that are still left for us to complete in this poem. So let's start. From the neighboring school come the boys with more than their wonted noise, right? So now uh, from the starting, I have told you that this chapter that this poem is all about rain, where the poet is appreciating the rain, right? So from the neighboring school, right? So now the poet is saying कि जो बगल में neighboring school है वहाँ के लड़के जो हैं they are coming out of the school with more than their wanted noise. Wanted means habitual, right? कि जैसे you know better when school gets over, when small children comes out, right? So they make noise. Why? Because they get happy that they are going back to home. So like this, in the same manner, the boys who are coming outside the school, they are making wanted noise because they are happy. And why they are happy? Because the rain is there, and that rain has made the environment very pleasant, right? So let's move further. And commotion, wanted noise and commotion means excitement, right? And down the wet street means जो road अब क्या हो चुका है, wet हो चुका है, means गीला हो चुका है, means because of the rain the river, sorry, the water is flowing in on the street. सेल देयर मिमिक फ्लीट, सेल देयर मीन्स वो नाव बनाते हैं, मिमिक मीन्स कॉपी ऑफ, मतलब एक दूसरे को देख करके वो क्या बना रहे हैं, शिप्स बना रहे हैं. फ्लीट्स मीन्स शिप्स, और कैसी शिप्स, पेपर्स की. तो पेपर की वो शिप बना रहे हैं एक दूसरे को देख करके. एंड दे आर सेलिंग मीन्स दे आर making that paper boat run onto that street water, right? Till the treacherous pool means dangerous. अब क्यों? क्योंकि भारी बारिश हो रही है और वो पूल जो है, अब जो रोड, जो गलियां हैं, रोड हैं, वो क्या बन चुका है, अब पूल बन चुका है. क्यों? क्योंकि वहां पे बारिश का पानी भर चुका है. और वो बारिश जैसे जैसे तेज हो रही है, या तेज बारिश होने के कारण इतना तेज बहाव है पानी का, that it has become now a dangerous pool, not for the people who are living over there, but for things like boat, papers, paper boat, right? अब पेपर बोट क्योंकि वो पेपर बोट है, बहुत सॉफ्ट है, और वो तुरंत के तुरंत पानी से खराब हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, राइट? सो ट्रेचरस पूल, तो ट्रेचरस, why it is dangerous? It is dangerous as far as paper boats are concerned, because the boys have made the paper boats and they are uh, sailing it on that particular water, right? Till the treacherous pool again means dangerous, engulfs means wash out, क्योंकि इतनी तेज बहाव है कि वो पानी के जो नाव वो बना के तैरा रहे हैं कहाँ पे, उस पानी में, वो उसको बहा के ले जा रही है. देम इन इट्स whirling मीन्स मूविंग अराउंड. कभी आपने देखा होगा पानी जब गोल 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 करके नाचने लगता है, दैट मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज whirling. फॉर एग्जाम्पल, आप बकेट में पानी भरो और बकेट में हाथ अपना डाल के उसको राउंड राउंड कर दो. सो यू आफ्टर फ्यू सेकेंड रिमूव योर हैंड. सो व्हाट विल सी, द वाटर विल कीप ऑन रोलिंग, राइट? रोलिंग मीन्स वो राउंड राउंड करता रहेगा. दैट एक्टिविटी और दैट थिंग इज नोन एज whirling. सो engulfs them means वॉश आउट कर लेती है अपने whirling and turbulent ocean, right? So turbulent means again unstoppable or moving, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है, तो वो क्या कर रही है, now that dangerous pool is taking all the paper boats in its whirling and turbulent ocean. And whirling and turbulent means moving around and unstable or unstoppable, right? So next answer. In the country on every side, where far and wide
Like a leopard's tawny and spotted hide stretches the plain. To the dry grass and the drier green, how welcome is the rain. Right? सो इन द कंट्री, यहाँ पे कंट्री का मतलब देश नहीं है, यहाँ पे कंट्री का मतलब है रूरल एरिया. सो इन द कंट्री मीन्स अब पोएट गांव की बात कर रहा है और वो कह रहे हैं कि गांव मतलब जहाँ पे ये बारिश हो रही है उस गांव में जब वो दूर दूर तक नज़र डालते हैं, मतलब चारों तरफ दूर दूर तक जब वो नज़र डालते हैं, वेर फार एंड वाइड मीन्स दूर दूर तक जब वो उनकी नज़र जाती है, तो चारों तरफ दूर दूर तक जब उनकी नज़र जा रही है उस पर्टिकुलर विलेज में जहाँ ये बारिश हो रही है. सो लाइक अ लेपर्ड्स टॉनी, टॉनी मीन्स ब्राउनिश येलो कलर एंड स्पॉटेड हाइट स्ट्रेचेस द प्लेन. सो वहाँ पे जो प्लेन्स हैं मीन्स जो ग्रासेस हैं, जो ग्रीन हैं, वो दूर दूर तक फैली हुई हैं. और अब क्योंकि बारिश अभी हो रही है और इससे पहले क्या माहौल था, इससे पहले माहौल था समर का. राइट? समर मीन्स एक्सट्रीम हीट एंड ड्राई स्पेल का. तो इस वजह से एक्सट्रीम हीट और ड्राई होने की वजह से, इन्वायरमेंट ड्राई होने की वजह से जो प्लेन्स हैं, जो ग्रासेस हैं, वो सब क्या हो चुकी है, एकदम ड्राई हो चुकी है. जो ग्रीन है, जो ग्रासेस है, वो एकदम मतलब सूख चुकी हैं. और उनका जो कलर है, जो क्योंकि सूख जाती हैं, तो ग्रीन कलर से आपको भी पता होगा कि लीफ व्हेन बिकम ड्राई सो इट चेंजेस इनटू ब्राउनिश येलो कलर. तो उसी तरह जो भी दूर दूर तक वहाँ पे ग्रास और प्लेन्स पे उगी हुई हैं, वो एकदम टर्न होके किसमें बदल गई हैं, उसमें वो बदल गई हैं लेपर्ड की बॉडी की तरह. स्पॉटेड हाइट का मतलब होता है फर ऑफ लेपर्ड. राइट? सो जो भी ग्रासेस हैं, जो भी वहाँ पे ग्रेन्स हैं, वो टर्न हो चुकी हैं ब्राउनिश एंड इट इज़ लुकिंग लाइक अ फर ऑफ अ लेपर्ड. लाइक मीन्स द आउटर कवरिंग बॉडी ऑफ द लेपर्ड. टू द ड्राई ग्रास एंड द ड्रायर ग्रेन. अब जो ड्रायर ग्रासेस हैं और ड्रायर ग्रेन है, क्योंकि ड्राई हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ द समर सीजन, नाउ दे आर ऑल्सो वेलकमिंग द रेन. राइट? सो लेट मूव टू द नेक्स्ट आंसर. In the furrowed land, the toilsome and patient oxen stand, lifting the yoke encumbered head, with their dilated nostrils spread. Right? So in the furrowed land, furrowed means आपने देखा होगा जब ट्रैक्टर से या बैल से जब खेत को जोता जाता है तो वहाँ पे वो एक लाइन बन जाती है. आपने देखा होगा लाइन मेड ड्यूरिंग फार्मिंग, तो वो यही लिखा है, फरोड मीन्स अ लाइन मेड ड्यूरिंग फार्मिंग. जो प्लफिंग के दौरान लाइन बन जाती है दैट इज नोन एज फरोड. सो इन द फरोड लैंड द टॉयलसम, मतलब जो अब खेत जो इस तरह लाइन बाय लाइन बन चुका है उसमें कौन खड़ा है, टॉयलसम मीन्स लेबोरियस. राइट? लेबोरियस वन हु डू अ वेरी और like too much hard work. Right? टॉयलसम एंड पेशेंट मीन्स काम. तो वहाँ पे ऑक्सन मीन्स जो वहाँ पे बैल खड़ी है, जो अभी तक ये खेत में लाइन बनाने का मीन्स खेत जोतने का काम कर रहे थे, वही बैल अब वहाँ पे खड़े हैं, जो कि लेबोरियस भी हैं और बहुत पेशेंट है. राइट? लिफ्टिंग द योक एनकम्बर्ड हेड. राइट? योक एनकम्बर्ड मीन्स आपने देखा होगा कि बैलों को जब खेत जोतने के लिए यूज़ किया जाता है तो उनके गले में वो लॉन्ग पीसेस ऑफ वुड लगा दिया जाता है जिससे कि वो खींचते हैं. ठीक है? खेतों में, तो उसे कहते हैं योक एनकम्बर्ड. सो और इतनी भारी से, जो कि उनका पूरा हेड मीन्स जो उनका पूरा गला है, जो उनका पूरा हेड है, वो इस लॉन्ग पीस ऑफ वुड को लेकर के खड़े हुए हैं. राइट? विद देयर डायलेटेड नॉस्ट्रल्स स्प्रेड, और डायलेटेड मीन्स ओपनड वाइड. ठीक है? जो उनका नॉस्ट्रल्स है मीन्स नथुना है, वो पूरी तरीके से खुला हुआ है. क्यों? क्योंकि अब वो भी जानते हैं कि नाउ इट इज़ द टाइम व्हेन इट इज़ रेनिंग एंड दे आर enjoying the environment. Right? So let's proceed to the next answer. They silently inhale the clover scented gale. Inhale means breathe in. Right? आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में inhale and exhale. So inhale means to breathe in and exhale means to breathe out. They silently inhale. अब वो वहाँ पे खड़े हुए हैं because it is raining, so that is why they are not doing any work right now. So they silently inhale. वो खड़े खड़े वहाँ पे they are inhaling means breathing in the clover scented gale. Gale means wind and clover means a herbaceous plant.
सेंटेड मीन्स अ काइंड ऑफ अ स्मेल, ठीक है। तो जो भी बारिश के होने से जो भी चीज़ें, जो भी वहाँ पे सेंट, एक हिसाब से मिट्टी की जो खुशबू है और जो प्लांट्स की खुशबू है वो जो निकल के आ रही है, दे आर स्मेलिंग एंड दे आर फीलिंग हैप्पी, राइट। So let's proceed to the next stanza. And the vapors that arise from the well watered and smoking soil. और फिर वहाँ पे वेपर्स भी अराइज हो रहे हैं, राइट। वेपर मीन्स ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वेपर्स भी अराइज हो रहे हैं फ्रॉम द वेल वाटर्ड एंड स्मोकिंग सॉइल। अब उस सॉइल से जो कि वेल वाटर्ड हो चुका है, मतलब अच्छी तरीके से भीग चुका है, क्यों? क्योंकि बारिश के कारण। एंड स्मोकिंग मीन्स, स्मोकिंग सॉइल मतलब स्मोकिंग का यहाँ पे मतलब है बर्निंग। और क्यों? क्योंकि इससे पहले जब तक बारिश नहीं हुई थी तब तक तो लैंड क्या हो रहा था, बर्न कर रहा था, बिकॉज ऑफ द समर सीजन, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड ड्राइनेस, राइट। बट नाउ एज द रेन हैज कम एंड it has showered, na, the rain has showered everywhere, so that is why well watered हो गया है। और well watered की वजह से जो बर्निंग सॉइल था उससे क्या एरप्ट हो रहा है या क्या ऊपर उठ रहा है, वेपर्स उठ रहे हैं, राइट। फ्रॉम दिस रेस्ट इन द फरो आफ्टर टॉयल, for this rest in the furrow after toil, their large and lustrous eyes। अब क्योंकि बारिश हो रही है तो they are अब यहाँ पे किसको रेफर किया है, फिर से ऑक्सन को रेफर किया गया है, ठीक है। for this rest in the furrow after toil, toil means to hard work, to do the hard work। क्योंकि अब इन्होंने इतना हार्ड वर्क कर लिया था अभी तक जब तक बारिश नहीं हुई थी, और अब बारिश होने के कारण उन्होंने, अब वो ऑक्सन मतलब जो वो बैल हैं वो काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, उस फार्मिंग लैंड पे। देयर लार्ज एंड लस्ट्रस आइज सीम टू थैंक द लॉर्ड। नाउ अब वो खड़े हैं और वो बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, उस रेनी सीजन को एंजॉय कर रहे हैं। एंड their eyes are shining, why? Because they are also getting relax or relief from the extreme heat and dryness। उनको भी रिलीफ मिला है, रिलैक्स मिला है रेन के आने से, ठीक है। और उनकी आइज़ जो है वो शाइनिंग है, बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है, और ऐसा लग रहा है दैट दे आर थैंकिंग टू द लॉर्ड मोर देन मैन स्पोकन वर्ड। मतलब किसी इंसान के बोलने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी आँखों को देखना जो कि शाइन कर रही है। एंड वाई दे आर शाइनिंग, और व्हाट सिग्नल दे आर गिविंग आउट, द सिग्नल दैट दे आर गिविंग आउट इज दैट इट सीम्स लाइक दे आर थैंकिंग द लॉर्ड फॉर द रेन। सो लेट प्रोसीड टू द नेक्स्ट आंसर क्लास। नियर एट हैंड फ्रॉम अंडर द शेल्टरिंग ट्रीज। नियर एट हैंड का मतलब है क्लोज बाय, मतलब पास में ही। तो पोएट की नज़र अब एक पीजेंट पे जाती है, पीजेंट मीन्स फार्मर, राइट। अब पीजेंट पे जाती है, फार्मर पे जाती है, और उनको क्या दिखता है, फ्रॉम अंडर द शेल्टरिंग ट्रीज। शेल्टरिंग ट्रीज मीन्स अब बारिश हो रही है तो वो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे क्या करता है, छाँव ले लेता है, मीन्स अपना बचाव करता है एक पेड़ के नीचे रुक करके। सो फ्रॉम अंडर द शेल्टरिंग ट्रीज द फार्मर सीज। अब फार्मर देख रहा है, क्या देख रहा है, हिज पैस्चर्स एंड हिज फील्ड्स ऑफ ग्रीन। वो अपने पैस्चर मीन्स ग्रीन लैंड, मतलब जो अभी वो अपने खेत में काम कर रहा था और जो उसके फील्ड में ग्रीन उगी हुई है वो उनको देख रहा है। एज दे बेंड देयर टॉप्स टू द नंबरलेस बीटिंग ड्रॉप्स। क्योंकि अब वो उसकी जो ग्रीन्स हैं, जो ग्रासेस हैं वो बढ़ गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, और वो जैसे जैसे पानी तेज़ तेज़ बारिश हो रही है या बरस रहा है, वो हर एक बूंदों के साथ वो बेंड हो जा रहे हैं। मतलब जैसे पानी पड़ रहा है, क्योंकि ग्रास है और ग्रीन्स है, तो जैसे पानी पड़ रहा है वो गिर जा रही है या झुक जा रही है, राइट। बेंड मीन्स झुकना। ऑफ द इंसिस्टेंट रेन, क्योंकि कॉन्टिन्यूस रेन हो रही है, इंसिस्टेंट मीन्स कॉन्टिन्यूस रेन हो रही है, इस वजह से हर एक नंबर जो नंबरलेस मीन्स अनकाउंटेबल जो कॉन्टिन्यूस रेन हो रही है वो क्रॉप्स और ग्रेन्स को के टॉप पे पड़ रही है, और इसकी वजह से वो बेंड हो जा रही है, मीन्स झुक जा रही हैं। ही काउंट्स इट एज नो सिन। मतलब अब वो क्योंकि अपने खुद के खेतों में वो ध्यान दे रहा है, ध्यान लगा के देख रहा है कि बारिश उसके खेतों में क्या क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसको कितना नुकसान हो रहा है और उसको कितना नुकसान नहीं हो रहा है, और सिर्फ अभी वो किस पे नज़र डाल रहा है, सिर्फ अपने खेतों पे। इस वजह से यहाँ वो कहता है, यहाँ पोएट कहते हैं कि उसको बिल्कुल भी ये नहीं लगता, सिन मीन्स रॉन्ग, उस फार्मर को बिल्कुल भी गलत नहीं लगता। क्या नहीं लगता, किस चीज़ की गलती नहीं लगती, दैट ही सीज देयर इन। मतलब
देयरइन मतलब तुरंत के तुरंत अगर वो अपने खेतों में अपने धान को, अपने फील्ड को, अपने ग्रासलैंड को अगर वो देख रहा है, तो इसमें फार्मर को रियलाइज़ हो रहा है कि वो कोई गलती नहीं कर रहा है, इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है कि अगर मैं इस बारिश में सिर्फ अपनी चीज़ों के एडवांटेज या डिसएडवांटेज को देख रहा हूँ। ओनली हिज ओन थ्रिफ्ट एंड गेन। तो ओन थ्रिफ्ट एंड गेन का मतलब है गुड ग्रोथ एंड गेन। अब वो खुद के एडवांटेजेस बारिश के, क्योंकि बारिश आती है तो डिसएडवांटेज भी होता है फार्मर्स को, एडवांटेज भी होता है। तो यहाँ पे फार्मर्स इस पोएम में इस फार्मर को एडवांटेज हो रहा है। दैट इज़ वाई द पोएट इज सेइंग कि उस फार्मर के अंदर कोई गलत भावना इसको लेकर के नहीं है कि अगर वो अपने एडवांटेज को देख रहा है और अपने खेतों को देखकर वो खुश हो रहा है, अपने ग्रेन्स को, अपने फील्ड को, अपने ग्रासलैंड को देख के वो खुश हो रहा है। सो क्लास, विद दिस we have completed the whole poem, and this poem was written by H.W. Longfellow. So this is where we end our topic for today. Thank you all. Stay safe and take care. So students, today we have completed this poem, and in our next class we will start with the new chapter, that is Mrs. Donovan's Dog. That is the lesson number 2 of our periodic test 1 syllabus, right? So it is compulsory for you all to come and attend. Come and attend means it is compulsory for you to buy the books as soon as it is possible. Tell your parents to buy the books, and so that your syllabus should not left behind, right? And no, the main thing is that in our next class we will be starting with Mrs. Donovan's Dog, right? So it will be better for you to attend the next class. So till then, thank you class, and stay safe.